Hi learners, how are you doing? So today we will be seeing a problem from operation research management, network analysis. This method is called as the PERT method. The full form of which is program evaluation and review technique. Without wasting time, let's see what is the problem. The language that I'll be using in this explanation will be both Hindi and English, so it will be better for you to understand. अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर 8 एक्टिविटीज दी गई है here, and we have 3 types of different times. First time is called as the optimistic time, the second one is called as the most likely time, and the third one is called as the pessimistic time. हमारा आंसर इजी करने के लिए, थोड़ा हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम को स्मॉल लेटर ए से डिनोट करेंगे, मोस्ट लाइकली टाइम को स्मॉल लेटर एम से डिनोट करेंगे और पेसिमिस्टिक टाइम को स्मॉल लेटर बी से डिनोट करेंगे. ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए. लेट्स सी कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है. नाउ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड टू अस इज टू ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम. क्रिटिकल पार्ट ढूंढना है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ढूंढना है. Now we will not be focusing more on this part of the question because you might have done a lot of network diagrams, a lot of critical paths and project completion time. The main focus of this video is to make you understand how to calculate variance and how to calculate the probability of a project. Fine. So let's see if you might have if you might have constructed this diagram, the network diagram. अगर आपने नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया होता तो ये किस तरह का लगता. as you can see in your on the screen, the diagram would have looked somewhat like this, where I have already marked with red lines which is your longest path and which is called as the critical path. Fine. Which is called as the critical path. So your critical path over here, will be named as 122, 223, 3 to 5 and 5 to 6. The first thing that we will be writing. The second thing that the question says is, what is your project completion time? Now my project completion time will be the time which is the longest. Fine. So the longest time, if you can see, is here 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 11 plus 2 is 13. Fine. So my longest time over here is of 13. Okay. If the question says days, it will be days. Be specific about this. Fine. I hope you have done a lot of these things, so we will not be focusing on this. So पहला जो part of the question से है वो हमें पूछ रहा था कि critical activity क्या है, critical path क्या है, and what is my project completion time. So this is my critical path 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 and 5 to 6, and my project completion time is 13 days. Fine. We move ahead to the question which says, okay, what is our variance and expected project completion time? Fine. To calculate the variance, what we have to do is we have to construct a table. Okay. As you can see on your screen, this is a table to calculate the expected time and the variance. If you remember, problem start करने से के time पे I have told you कि we will be denoting optimistic time as A, small a, capital A, both will do, and most likely time with M, and your pessimistic time with B. तो हमें क्या करना है, 4 plus A plus 4M plus B ऐड कर
We have to divide it by 6. This is the formula for expected time. Fine. This is the formula for expected time. And the variance ka formula is very simple. It says B minus A, the optimistic time minus the pessimistic time. The pessimistic time minus the optimistic time upon 6 and the whole square. Fine. So this is the formula to calculate the expected time and the variance. Expected time and the variance. So let's calculate the first value. If you can see the first value, A का value was, A का जो हमारा value था वो 2 था, B का value था 6 and M का value हमारा है 4. Fine. So 2, that is A, plus 4 into M, 4 4s are 16, plus this 6 divided by 6 will give you, now this is 22, 22 plus 2 is 24, 24 by 6, and you will get an answer of 4. 6 4s are 24. So you will get the expected time as 4. Similarly, you calculate for your other activities. सारी activities के आठों की 8 activities के लिए आपको ये calculate करना है the expected time. Okay, variance calculate करना is really simple. What you do is you take B, minus it with A. Okay, जैसे कि यहाँ पर B का value is 6, I minused it with 2 and divided it with 6 और इसको square डाला. 2 6 minus 2 is 4, 4 upon 6 squaring किया तो 16 upon 36 is the value that I am getting. Don't cut it, keep it as it is because it will be easier for the calculation in the next part of the problem. 16 by 36 को डिवाइड मत करिए, ऐसे ही रखिए क्योंकि आगे के प्रॉब्लम के लिए हमें काम आने वाला है. फाइन. सो इसी तरह से आपको सारे एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करना है, सारा वेरिएंस कैलकुलेट करना है. अगर आप ये अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आपका डेटा कुछ इस तरह का लगेगा. Fine. So the second part of the question is already done. The B part, which says what is the expected time and what is the variance. This is the easiest part to do. Fine. Expected time bhi nikal gaya and we had the variance also. Right. Let's move on to the third part, which says okay, what is my project completion time? Okay, we'll go back to the question. What is my probability? What is the probability of completing the project in 15 days? Fine. 15 दिन के अंदर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मुझे, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 15 दिन में कंप्लीट हो जाए? ओके, टू कैलकुलेट दिस वी नीड द वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना इज इजियर, इज द इजी पार्ट. यू नो व्हाई? आपको क्या करना है, सारे जो वेरिएंसेस है क्रिटिकल एक्टिविटीज के उनको ऐड करना है. जो मेरा क्रिटिकल पार्ट अगर मैं आपको बताऊं इज दिस 1 to 2 to 3, 3 to 5 and 5 to 6. 1 to 2. Okay, I'll show in this part. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 and 5 to 6. This is my critical path. Now सिर्फ इन्हीं वैल्यूज के वेरिएंसेस को हम यूज करेंगे. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ये चारों वेरिएंसेस को हम लेना है और हमको इनको ऐड करना है टू गेट द प्रोजेक्ट वेरिएंस. ठीक है. इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था इसको कट मत करना. एज यू कैन सी ऑल द डिनोमिनेटर्स हैज 36. सारे डिनोमिनेटर्स की वैल्यू 36 है. तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है एंड वी विल ऐड द अबव वैल्यूज. फाइन. ऐड करने के बाद यू विल फाइंड योर प्रोजेक्ट वेरिएंस लाइक दिस. आपकी वैल्यू आ जाएगी 72 by 36. डिवाइड करने पे यू गेट द वैल्यू एज 2. नाउ वाई वी कैलकुलेटेड प्रोजेक्ट वेरिएंस. प्रोजेक्ट वेरिएंस हमें ढूंढने की वजह थी कि हमें ढूंढना था स्टैंडर्ड डिविएशन. ये स्टैंडर्ड डिविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
to calculate the project, the probability, if the project will be completed in 15 days. 15 दिन के अंदर अगर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की बहुत जरूरत है. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इज, as you all know from lower standards, is the under the root variance. तो जो भी आपको वेरिएंस मिला है, ओके, उसका रूट अगर आप निकालेंगे, so you will get the variance, the standard deviation. To calculate this, you can easily use your calculator and do that. 2 लिखकर press the root का button and you will get the value. Fine. So this is an important part. Calculate the standard deviation. Okay. Now we move to the main part. How do we do the sum for, the probability calculation? Now, this is the formula. Calculate the probability. The formula is really simple. It says the time which has been asked in your problem. 15 दिन बोला है, 15 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना है हमारा प्रोजेक्ट. टीई इज योर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम जो हमने क्रिटिकल पाथ में निकाला वो 13 दिन का है. अपॉन, अभी हमने पीछे स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू मुझे आई 1.41. ओके, नाउ वी डिवाइड दिस, we minus this first, we get 2 upon 1.41. We divide this value, we get 1.42. We get 1.42. Okay, I hope you are understanding. यहाँ तक आई होप आपको सबको समझ में आ गया है. ठीक है, वापस एक बार समझाता हूँ इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट. ओके, फॉर्मूला याद रखना. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. व्हाट यू डू इज यू यूज, क्या क्वेश्चन पूछा है आपको, कुछ भी पूछा है आपको, 15 दिन पूछा है, 20 दिन पूछा है, 25 दिन पूछा है, व्हाटएवर जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर 15 डेज पूछा है, सो आई टेक 15 माय फर्स्ट वैल्यू. सेकेंड वैल्यू कोई भी आप सम करिए, हमेशा आपको आएगा द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो हमने निकाला क्रिटिकल पाथ का. फाइन, अपॉन द स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी आपने कैलकुलेट किया. जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट अ वैल्यू विच इज कॉल्ड एज दी, which as you can see on your screen. Now what you do next part is normal distribution का टेबल आपको एग्जामिनर से मांगना है. मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे भी हो सकता है, या तो if it's not there, ask the examiner. Examiner will give you a normal distribution का टेबल, लॉग टेबल की तरह होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल. उसके अंदर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.42. उसके अंदर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.42. व्हाटएवर वैल्यू दैट यू आर गेटिंग, यू हैव टू मेंशन दिस. एज यू कैन सी हियर, टेबल वैल्यू जब हमने इसको चेक किया तो हमें मिल रही है 0.422. फाइन, 0.422. नाउ व्हाट वी डू तो दिस वैल्यू, हमको क्या करना है, इसके अंदर 0.5 को ऐड करना है. हमको क्या करना है, इसके अंदर 0.5 को ऐड करना है. जैसे ही हम इसके अंदर 0.5 को ऐड करेंगे, जो हमारा आंसर आ रहा है दैट विल बी माय प्रोबेबिलिटी. दैट विल बी माय प्रोबेबिलिटी ऑफ 15 days. नाउ I will explain you why we have taken 0.5 over here and why we have added to this value. Why we have added to this value. Before that, once again I'll explain you what we have done. We have used this formula जिसके अंदर हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको हमने माइनस किया हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम से और डिवाइड किया स्टैंडर्ड डिविएशन से. जो भी हमने वैल्यू मिला उसको हमने नोट डाउन किया, जैसे कि मिला 1.42. हमने अब क्या किया, इसे टेबल वैल्यू के अंदर चेक किया, हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अंदर, और द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इज 0.422. फाइन, जैसे ही हमें वैल्यू मिलती है, वी विल राइट डाउन दैट माय प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 15 days इज द टेबल वैल्यू प्लस 0.5. व्हाटएवर द वैल्यू कम्स, ओके, फॉर एग्जांपल यू गॉट 0.9222, वी डिवाइड, okay, we multiply this value with 100. whatever the value gets, it is my percentage. मतलब यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज आ रहा है that is 92.2%. ओके, एक कंफ्यूजन होगा कि ये 0.5 को क्यों लिया और क्यों ऐड किया. इसका एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल.
Okay, this is a normal distribution का curve. As you can see, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया होगा. This part of the curve, this part of the curve is 50%, and this part of the curve is also 50%. Okay, probability में हम 50% को 0.5 लिखते हैं. So that's why we have written 0.5 over here, 0.5 over here. वापस एक बार समझाता हूँ. सेंटर से we have taken a line. लाइन के इस तरफ का पार्ट 0.5 है, लाइन के इस तरफ का पार्ट 0.5 है. फाइन. Now whatever you get whatever value you get for your critical path, उस वैल्यू को आपको सेंटर लाइन पर लिखना है. जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हमारा क्रिटिकल पाथ 13 डेज का था. ठीक है, हमारा क्रिटिकल पाथ 13 डेज का था. फाइन. तो वी हैव रिटन दिस वैल्यू इन द सेंटर. अगर आपको क्वेश्चन में आ रहा है ऐसी वैल्यू जो 13 से बड़ी हो, तो यू राइट ऑन द राइट हैंड साइड. ऐसी वैल्यू जो 13 से बड़ी है उसको आपको राइट हैंड साइड पर लिखना है 13 के. जैसे कि हमारा क्वेश्चन था अभी जिसमें 15 पूछा था, तो वी हैव रिटन 15 ओवर हियर. अगर वैल्यू इज लेसर देन 13, से अगर क्वेश्चन यू वुड हैव आस्क्ड 6 दिन का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा वैल्यू वुड हैव बीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वुड हैव बीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. फाइन. अब क्योंकि मुझे 15 डेज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो मुझे जो रीजन ढूंढना है वो रीजन ये पूरा है. ओके, ये पूरा है, ये पूरा रीजन हमको ढूंढना है. फाइन. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा शेडेड पार्ट है, दैट इंक्लूड्स this part also, which is altogether 0.5, which is altogether 0.5. okay, और ये जो पार्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है यूजिंग द लॉग टेबल, दैट आई एम शेडिंग दिस, ये येलो पार्ट. ठीक है, ये पार्ट हमें अभी हमारी टेबल वैल्यू मिली है. फाइन. जो कि थी 0.4222. फाइन. तो हमारी जो वैल्यू थी, टेबल वैल्यू, दिस वैल्यू विच वाज 0.4222 वैल्यू था. ठीक है. एज यू कैन सी देयर इज ऑल्सो सम पार्ट लेफ्ट ओवर हियर. ठीक है, वो कौन सा पार्ट है? वो 0.5 में से 0.42 को माइनस करेंगे तो वो पार्ट मिलेगा आपको. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर इफ यू नॉट गेटिंग दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल गिव यू वन सिंपल suggestion. What you do is, अगर आपका question is on the right hand side, अगर आपका question is on the right hand side, you add 0.5. You add 0.5. That means if the critical path से ज्यादा बड़ा वैल्यू है, वैल्यू बड़ा है, तो you add 0.5. If the value is less, say 6, you subtract 0.5. आप 0.5 को आपके क्वेश्चन से सब्सट्रैक्ट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम regarding the explanation or anything that you want, you can put your suggestions into the comment box. Thank you for watching.